Okay, hello everyone. We are going to start in almost 8 minutes. So please bear with us. So the session will start at 6. And I think till then you guys can open your cameras because we are here to do yoga. So it would be better if you guys could do with us simultaneously. And we will start in 7 minutes. आप सभी लोग तब तक हमें बता सकते हैं कि हाउ यू फीलिंग अबाउट द इवेंट एंड आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं, लाइक व्हाट आर यू हियर टू लर्न. सो तब तक आप सब लोग कह सकते हैं.
Yeah, so guys, we are going to start in 3 minutes almost because the time was 6, so we are just waiting for everyone to join so that we can start. Until then, I would request you all, like, you can open up your cameras because we are here for a workshop, so it would be better if you could do it with us. Yeah, you're right. I feel the same, Anand. Everyone should switch on their cameras for the better interaction and for the better flow of the workshop. Okay guys, so now we are starting. सबसे पहले have a lovely evening everyone and welcome to Yog Sandhya. It's a workshop, a step towards life as you were promised. So it is day 1, we are here. And first of all, I would like to say that it is organized by Isaac in Jalandhar, partnered with Soul Blossom. So now my co-host Muskan Baba will tell you more. On the occasion of International Yoga Day, we will get a chance to learn yoga and meditation from the leading experts of the day is the most beneficial in the COVID days. It is going to be a 7 days workshop. And today, on the very first day, we'll learn To provide exposure to the youth and to do 17 SDGs and to like procure them. So, and Isaac in Jalandhar, that is the organization that is providing you this workshop, is aiming to make Jalandhar sustainable till 2025. So I think we can start now, and Muskan will introduce to the experts to you. Yeah, I'm Muskan, your host for the evening with my co-host Manan and Pravai. So yeah, welcome everyone for coming here and for joining this workshop. So Now, without further delay, let us welcome the people behind the existence of Soul Blossom, Miss Saloni Chandra, the international yoga teacher and co-founder of Soul Blossom, and Mr. Umang Agrawal, the meditation and mindfulness expert and co-founder of Soul Blossom. Hello. hi ma'am. Hello, ma'am. Yeah ma'am, you can take it forward. मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी मैम. हाँ जी. अच्छा, अभी ना कुछ लोगों ने पहले अपनी वीडियोस ऑन नहीं करी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए. यहाँ पे हम सब फ्रेंड्स हैं, तो आप अपनी वीडियोस ऑन करके बैठ सकते हैं ताकि मैं भी आपको देख पाऊँ कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आप कोई गलती करोगे तो मेरे लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा. तब अपनी वीडियोस ऑन करके बैठ सकते हैं. तो अभी आपको 5 मिनट्स उमंग आपको कुछ समझाएंगे, तो आप ध्यान से वो समझ लें एक बार. Hello everyone. So welcome to this 7-day event on yoga. So we are starting this on today International Yoga Day. तो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लोग हैं आज हमारे साथ, 21 से लेकर आई थिंक 50. तो आज जो हम योगा और मेडिटेशन कराएंगे, जो भी हमारा फ्लो होगा वो सबके लिए कंबाइंड है. वो ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज लाइक कि वो ऐसा बना है कि वो
यंग पीपल के लिए है और इट इज फॉर ओल्ड पीपल। ठीक है, तो ये जो हमारा 7 डे इवेंट है ये हमने बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन करा है आप लोगों के लिए। लाइक फर्स्ट डे वी आर डूइंग योगा फॉर कोविड, सेकंड डे वी आर डूइंग डांस योगा एंड स्लीपिंग मेडिटेशन। सो हर दिन हमारा कुछ ना कुछ नया करिकुलम है इस 1 घंटे का। पर क्या होता है कि हम सबने कुछ कुछ योगा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, मतलब हम सुनते हैं बाहर योगा के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, बट आपको ये जो 1 घंटा आप अपने साथ दोगे आज से लेकर 7 दिन तक, आपको सिर्फ ये टाइम अपने साथ स्पेंड करना है। मतलब इस टाइम में आपको किसी भी आउटर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आप अपना मैट बिछाइए, अलग रूम में बैठिए और ये 1 घंटा जो भी फ्लो हम लोग कराएंगे वो आप अच्छे से फॉलो करिए विदाउट एनी जजमेंट कि ये ऐसा यहाँ हो रहा है, वहां वहां वैसा होता है, कुछ भी। आप बस ये एक्सपीरियंस करिए कि 1 घंटे के एंड में आपको कैसा लगता है। और हम गारंटी करते हैं कि आफ्टर द 7 डेज आपको इतना रिजुनवेटेड फील होगा जितना आप किसी रिट्रीट में एक्सपीरियंस करते हैं। और ये हमने ऐसा ही फ्लो डिजाइन करा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट डे हम करेंगे योगा फॉर कोविड। तो आजकल कोविड बहुत ही फेमस है क्योंकि ये वायरस ऑलमोस्ट हर जगह लोगों को परेशान कर रहा है और सब इसका ट्रीटमेंट बोल रहे हैं योगा है। ठीक है, तो आज जो हमारा कोविड स्पेशल योगा है, आपको मैं बताना चाहूंगा योगा फॉर कोविड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है जब आपको कोविड नहीं हुआ है उससे पहले, इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए योगा, ताकि आपको कोविड ना हो, और अगर हो भी तो इतना ही हो कि आप इट डज नॉट बिकम्स डेडली, आपको उस स्टेज तक ना जाए, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो। सेकेंड योगा होता है योगा ड्यूरिंग कोविड, कि जब आपको कोविड हो गया है तो हाउ कैन वी डू योगा एंड प्राणायाम कि जो आपका वायरस रेप्लिकेशन है, वायरस जो मल्टीप्लाई करता है आपके अंदर, वो स्लो हो जाए। तो ऐसे कौन से प्राणायाम हैं, ऐसे कौन से एक्सरसाइजेज जो हम कर सकते हैं ड्यूरिंग कोविड। और थर्ड पार्ट आता है योगा आफ्टर कोविड, क्योंकि जिनको कोविड हुआ है उनको एक्सपीरियंस है कि कोविड के बाद हमारी जो बॉडी है बहुत ज्यादा लूजन अप हो जाती है, मतलब हम चल नहीं पाते, बहुत ज्यादा थकान होती है। तो ऐसे कौन से प्राणायाम, कौन सी मेडिटेशन करी जाए ताकि कोविड के बाद हमारी रिकवरी बहुत फास्ट हो। और सच बताऊं तो योगा से बेटर इन तीनों पार्ट्स को कंबाइन करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आज हम कोविड स्पेशल योगा करेंगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे योगा जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो हमारे आगे के सब्सिक्वेंट डेज में अपने आप होता जाएगा। जब लाइक हमारा थर्ड डे जो है ब्रेथ एंड प्राणायाम वर्कशॉप, उसमें अपने आप जो आपका सेकंड पार्ट है वो पूरा कवर आउट हो जाएगा। तो आज हम फर्स्ट पार्ट पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो पूरा आपका सेशन सलोनी लेगी 45 मिनट्स का। एंड में 5 to 10 मिनट्स की हम एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करेंगे जो आपको शायद सब लोग फर्स्ट टाइम करेंगे और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, और एक लास्ट चीज कि जो भी डाउट्स आते हैं आपको सेशन के टाइम कि ये नहीं हो रहा, ऐसे कैसे करना है, ये है, उन सबको भूल के आपको जैसे जैसे फ्लो बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करते जाइए। एंड ऑफ द सेशन हम 5 मिनट डाउट सेशन रखेंगे जिसमें जिसको जो भी पूछना है वो पूछ सकता है। ठीक है, उस टाइम सबके लिए अनम्यूट कर दिया जाएगा सबको और हम इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो आप एंजॉय करिए ये 7 डेज को। ये आप लोगों के लिए हमने डिजाइन करा है, एक गिफ्ट है आपके लिए इंटरनेशनल योगा डे पे, आईसेक और सोल ब्लॉसम के कोलैबोरेशन में। और लेट्स एंजॉय दिस। चलिए सलोनी, फिर मैं सलोनी को हैंड ओवर कर रहा हूँ, वही आपका पूरा सेशन लेगी और उसके बाद देन आई विल टेक द लास्ट 5 to 10 मिनट्स। ओके, सो उमंग ने आपको सब कुछ समझा दिया है। मैं फिर से एक बार बस ये छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब अपना वीडियो ऑन कर लें अगर आप कर सकते हैं। अगर आपका नहीं मन है तो वो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, जो एक डिस्ट्रैक्शन का छोटा सा पॉइंट उमंग ने बोला था, तो उसका बस यही है कि आप बीच में मोबाइल ना चलाएं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा जैसे कॉल आ गया या हम उठ गए, या जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि आप पानी पी लीजिए, तो जब हम वो करते हैं तो एक योगा में जो फ्लो बना होता है हमारा माइंड का और बॉडी का, वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हम पूरा अलग हो जाते हैं उससे। तो आपको पूरा ब्रेक दिया जाएगा कि आपको पानी पीना है पानी पी लीजिए, आप वॉशरूम जाना है वॉशरूम चले जाइए, पर आप अपने मोबाइल्स प्लीज साइलेंट पे कर। ठीक है, तो अभी बहुत बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन। आई होप सब अपने मैट्स पे बैठे हैं।
बस एक और चीज कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे अभी 45 मिनट्स के लिए, वो आप अच्छे से पूरा फॉलो करिएगा। अपना कोशिश करिएगा कि आप अपना 100% दे पाएं, क्योंकि आपने 1 घंटा ये निकाला है अपने लिए, तो जितना ज्यादा आप गेन कर सकते हैं इस फॉलो अप से, पूरा अच्छे से गेन करिए, ताकि आप खुद भी कर पाएं और आप अपने फैमिली में या जिसको भी आप सिखाना चाहते हैं वो आप अच्छे से बता पाए उन्हें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आइज क्लोज, आंखें बंद कर लेंगे सब, अपने मैट्स पर बैठ जाएंगे कंफर्टेबली, सब आलती पालती लगा के बैठेंगे, लेग्स क्रॉस करके, जिसे हम सुख आसन बोलते हैं। आपकी हथेलियां खुली रहेंगी आसमान की ओर, और उन्हें अपने घुटनों पर रख लेंगे, कंधे ढीले, स्पाइन इरेक्ट, कमर एकदम सीधी रखेंगे, अपने चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट, और जितना रिलैक्स होके बैठ सकते हैं उतना रिलैक्स होके बैठेंगे। अब एक लंबा गहरा सांस लेंगे, और पूरी तरह से खाली कर देंगे। एक बारी फिर से, जितना धीरे धीरे आप लंबा गहरा सांस भर सकते हैं उतना लंबा गहरा सांस लें, और पूरी तरह से अपने को खाली कर दें। अभी हम ओमकार की चैंटिंग करेंगे, ओम की ध्वनि। आप ओमकार की ध्वनि के लिए पहले हम सब साथ में इनहेल करेंगे, आप सांस को भरोगे, और जब आप एक्सहेल करते हो तो आप पूरा अच्छे से ओम की ध्वनि को बोलते हो। सब साथ में इनहेल करना शुरू करेंगे। Breathe in. Breathe in. Relax. Just relax. Relax your whole body and your mind. अगर कोई भी विचार आ रहे हैं, चाहे ये कि मैं इतनी तेज ओम की ध्वनि नहीं निकाल पा रही हूँ, इतनी देर तक नहीं कर पा रहा हूँ, उसे बस आप महसूस करें, उस पर अपना ध्यान ना लेकर जाएं। ओमकार की ध्वनि से जो भी आपकी शरीर में सेंसेशंस हो रही हैं उन्हें महसूस करें। ओम एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो आपकी पूरी बॉडी को हील करता है। Now very slowly and gently you may open your eyes. बहुत धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
अभी हम सब साथ में खड़े हो जाएंगे, पर अभी तक हम जैसे खड़े होते थे वैसे खड़े नहीं होंगे। आज हम थोड़ा विदाउट सपोर्ट खड़े होने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने राइट फुट को जमीन पे टिकाना है, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास लॉक करेंगे और धीरे से अपने हिप्स को जमीन से ऊपर लिफ्ट करके खड़े होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ लोग ना कर पाए, पर अगर आप कर पा रहे हैं तो विदाउट सपोर्ट आप खड़े होने की कोशिश करें। बहुत धीरे से, आप गिरे नहीं, बिल्कुल आराम से। अभी हम बस 5 मिनट्स वार्म अप करेंगे अपनी बॉडी को खोलने के लिए, ताकि हम आसनास जब करें तो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स ना आए। तो हम बेसिक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे, पर अभी बस हम एक छोटी सी चीज देखेंगे कि आप जैसे खड़े हो तो आप देखोगे कि जो आपका बैलेंस है, बॉडी वेट है, वो आपके पैरों के अंगूठे से लेकर आपके हील तक पूरा आपका वेट आ रहा है। आप ऐसे नहीं खड़े हो कि आपका सारा जो वेट है वो आइदर आपके हील पे है या आपके पंजों पे है। आप एकदम सीधे खड़े हो और आपका सारा का सारा बॉडी वेट आपके पूरे फुट पे पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरे हील पे ज्यादा वेट है, तो हल्का सा आप अपने बॉडी को बैलेंस करें और कोशिश करें कि आप एकदम सीधे खड़े होके अपना बॉडी वेट पूरे अपने पैरों पे डाल पाएं। ठीक है। और जब भी हम वार्म अप करेंगे तो जो आपका फुट है वो एकदम सीधा रहेगा, ना ज्यादा बाहर जा रहा है और ना ज्यादा अंदर, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा रहेगा। आपके दोनों लेग्स, आपके जितने हिप्स ब्रॉड हैं उतना इक्वल खोल के रखेंगे। एक बार सब चेक कर लें। अभी धीरे से गर्दन के जाएंगे, चिन टू द चेस्ट कर रहे हैं। बस यहीं से जब आप इनहेल करना शुरू करेंगे, अपनी गर्दन को राइट साइड से घुमाना शुरू करें। धीरे धीरे एकदम आराम आराम से सांस भरते हुए गर्दन को घुमाना शुरू करेंगे। जब आपकी गर्दन पूरा पीछे है तो आप एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन को वापस लाएंगे पूरा नीचे। इनहेल करते हुए सेकेंड टाइम राइट साइड से नेक रोटेशन स्टार्ट करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से गर्दन को पूरा वापस नीचे। थर्ड टाइम पूरा अच्छे से ब्रेथ को नोटिस करते हुए करें। बस ऐसे मत करें कि आप बस करे जा रहे हैं। अगर आप अपना ब्रीदिंग सही नहीं रखेंगे तो आपको उतना इफेक्ट नहीं आ पाएगा बॉडी पे। लास्ट टाइम क्लॉकवाइज। एंड इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से इनहेल करते हुए गर्दन को घुमाना शुरू करेंगे और राइट साइड से एक्सहेल करते हुए वापस 4 टाइम्स मोर। वेरी स्लोली, हमें कहीं नहीं भागना है, पूरा अच्छे से ब्रेथ के साथ। नेक रोटेशन लास्ट टाइम। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो आंखें बंद ना करे, बाकी सब आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। हो जाने के बाद धीरे से गर्दन को सेंटर में लाएंगे। आर्म्स रोटेशन, पूरा अच्छे से हाथों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। पूरा अच्छे से पीछे अपनी बैकबोन्स को मिलाने की कोशिश करेंगे, उंगलियां खुली हुई। नॉर्मल ब्रेथ्स, एंटी क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों को 1 से 2 फुट खोल लेंगे। वेस्ट रोटेशन, पूरा अच्छे से कमर को घुमाना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड से वापस ले आएंगे।
वार्म अप बहुत ही जरूरी है। अगर किसी को बोरिंग लग रहा है तो वो बोरिंग ना समझे, अभी हम आसनास करेंगे, पर अगर हम डायरेक्ट आसनास पे जाते इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करें तो हमारी बॉडी में पेन्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आप यूट्यूब या टीवी पे देख के करते हैं तो कई बार हमें बॉडी में पेन्स आते हैं। वो इसी वजह से होता है कि ना हम शुरू में वार्म अप करते हैं और ना ही हम एंड में वार्म अप करते हैं। रिलैक्स, दोनों लेग्स मिला लें, दोनों हाथ घुटनों पे, गर्दन सामने, नीचे नहीं झुकाएंगे। नी रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, पूरा अच्छे से राइट टू लेफ्ट, दोनों घुटनों को साथ में घुमाना शुरू करें। बहुत ही बेसिक रोटेशन है ये, आपने स्कूल में, कॉलेजेस में, बड़े होके यह हर कोई करता है, पर बहुत जरूरी है ये पूरी बॉडी के लिए। एंटी क्लॉकवाइज, या आप कोविड के टाइम भी कर सकते हैं। और धीरे से कमर सीधी, पैरों को हिप्स के इक्वल खोल लेंगे, पंजे सीधे, दोनों हाथ सामने, पैरेलल टू ग्राउंड, और पूरा अच्छे से हाथों को शेक करना स्टार्ट करेंगे। जितना अच्छे से हिला सकते हैं दोनों हाथों को पूरा अच्छे से हिला दें ताकि पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चल जाए। अगर कहीं भी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो वो अच्छे से हो जाए। दोनों हाथ साइड में, पूरा अच्छे से जोश के साथ। जितना अच्छे से आप कर सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर, स्माइल के साथ पूरा अच्छे से एंजॉय करें। दोनों हाथ नीचे, जितना अच्छे से पूरा सर्कुलेट करवा सकते हैं ब्लड को। लास्ट 20 सेकेंड्स पूरा अच्छे से सर्कुलेट करवाएं। ये जनरल है, बहुत ही बेसिक हमारा वार्म अप है। एंड रिलैक्स, आंखें बंद, जस्ट रिलैक्स। हाथों में जो भी आपके सेंसेशंस हो रही हैं उन्हें होने दें। बॉडी एकदम स्टिल, बिल्कुल भी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं लाएंगे। बस महसूस करें ये वार्म अप। अगर किसी को कोविड है तो आप उन्हें भी बता सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कोविड के टाइम आपको बेसिक वार्म अप बोलते हैं करने के लिए, तो वार्म अप बहुत ही जरूरी है। ओके, सो अब हम बैठ जाएंगे, आंखें खोल लेंगे। अभी हम कैसे बैठेंगे, आप अपना राइट लेग को लेफ्ट लेग के साइड में रख लें, मतलब आप लेग्स क्रॉस करोगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास लॉक, और धीरे धीरे आप नीचे बैठने की कोशिश करोगे, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है तो वो नॉर्मल सपोर्ट लेके बैठ सकता है। रेस्ट आप कोशिश कर सकते हैं विदाउट सपोर्ट बैठने की। लेग्स क्रॉस करके सुखासन में बैठेंगे हम। तो जो हमने ओम के टाइम हथेली आसमान की ओर रख के हमने ओम की ध्वनि निकाली थी, इस मुद्रा को हम महामुद्रा बोलते हैं। ठीक है, तो आंखें बंद कर लेंगे। दोनों हथेलियों को घुटनों पे टिका लेंगे, पूरा अच्छे से हथेलियों को घुटनों पे रख के सपोर्ट देंगे। इनहेल करते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे लेके जाएंगे। अगर किसी को समझ ना आए तो वो आंखें खोल के देख सकता है। और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे, जितना नीचे आप जा सकते हैं। कमर को मोड़ेंगे नहीं, कमर सीधी रख के लोअर बैक से आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, और फिर जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। अभी हम बॉडी रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज।
इनहेल करते हुए धीरे धीरे बॉडी को घुमाना शुरू करेंगे, एकदम आराम आराम से। पूरा अच्छे से जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं, पूरा पीछे जाके सेंटर में आके लेफ्ट साइड से एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे आज हम। हो सकता है आज आपको थोड़ा ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही बेसिक योगा है, पर अभी कुछ नए लोग भी हैं जिन्होंने शायद नहीं किया है पहले कभी, तो सबको ध्यान में रखते हुए अभी हम करवा रहे हैं। फिर कल से धीरे धीरे हम थोड़ा और एडवांस करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट पूरा अच्छे से इनहेल करते हुए करेंगे और राइट साइड से एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे पूरा वापस आएंगे। सारा ध्यान अपनी ब्रेथ्स पे रखें, क्योंकि योगा का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ गए, आपने 10 बार आसना कर लिए, हेड स्टैंड कर लिया, क्रो पोज कर लिया। अगर आप एक भी आसना कर रहे हैं, चाहे आप 15 मिनट्स ओम की ध्वनि निकाल रहे हैं, पर आप पूरा ब्रीदिंग के साथ अगर उसे कर रहे हैं तो वो ही उतना आपको एडवांटेज देगा जितना 2 घंटे आप 20-30 आसना करेंगे। तो पूरा अच्छे से अपनी ब्रेथ्स को फॉलो करें। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद धीरे से दोनों हाथ सामने फैला लें। दोनों हाथों को पूरा सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। माथा जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दें आपके हिप्स जमीन से ऊपर नहीं उठेंगे। आप अपने हाथों को जमीन पे रखें। अगर आप माथा जमीन पे टच नहीं कर पा रहे हैं तो जितना भी नीचे आप जा पा रहे हैं उतना नीचे जाएं, पर हिप्स को ऊपर नहीं उठाएंगे। हिप्स आपके जमीन पे, और पूरा अच्छे से स्ट्रेच करेंगे बॉडी को आगे की तरफ। जस्ट रिलैक्स। इनहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर, एकदम सीधे, बॉडी सीधी। और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को अपनी साइड से वापस ले आएंगे नीचे। अब यहीं से हम पेट के बल लेट जाएंगे। अभी हम एक फ्लो कर रहे हैं जिसे हम पद्म साधना बोलते हैं। बहुत लोगों ने किया होगा, तो इसमें मैं 2-3 आसना स्किप करूंगी क्योंकि वो बहुत लोग अभी नहीं कर पाएंगे, वो बहुत एडवांस पोस्चर्स हैं। तो हम जो उसमें बेसिक है पद्म साधना में, बस वो करेंगे। और कोशिश करें आप आंखें बंद रख के सुनने के बाद उसे करें। पेट के बल लेट जाएंगे। हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे। अंगूठे को छोटी उंगली के नीचे रख के अपनी जंघाओं के नीचे टिका लें। चिन जमीन पे, बॉडी एकदम सीधी, दोनों लेग्स मिले हुए। अभी हम शलभ आसन करेंगे। पहले हम राइट लेग के साथ अर्ध शलभ आसन करेंगे, जिसके लिए आप क्या करते हो, जब आप इनहेल करते हो तो अपने राइट लेग को जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठाते हो, जितना ऊपर आप ले जा सकते हो। और जब आप शलभ आसन में पहुंच जाते हो तो आप ब्रीद आउट करके होल्ड करते हो। अभी सब साथ में करेंगे। अर्ध शलभ आसन के लिए ब्रीद इन और धीरे धीरे राइट लेग को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करें, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं। आपका चिन जमीन पे ही रहेगा। आके ब्रीद आउट एंड होल्ड, होल्ड। हर आसना में होल्ड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारी बॉडी में इफेक्ट आता है। शलभ आसन
हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आसना है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। अभी सब साथ में इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे राइट लेग को नीचे वापस जमीन पे रख देंगे। लेफ्ट लेग के साथ अर्थ शलभासन। इनहेल, very slowly lift your leg up as much as you can. Hold. Keep breathing normal breaths. जब आप आसना में होल्ड कर रहे हैं तो कोशिश करें आपकी बॉडी हिले नहीं और आप नॉर्मल ब्रेथ्स लेते रहें। Keep breathing. Inhale. एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस लेग जमीन पे। पूर्ण शलभासन करेंगे हम। दोनों लेग्स को जमीन से साथ में ऊपर उठाएंगे। जितना भी आप उठा पा रहे हैं, आधा इंच, 1 इंच, बहुत ज्यादा फोर्स ना डालें। आज आपका फर्स्ट डे है तो पूर्ण शलभासन के लिए ब्रीद इन, होल्ड, कीप ब्रीदिंग, जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। धीरे से दोनों हाथों को निकाल लें और मुट्ठियां खोल के दोनों हाथों को सामने ले आए और जमीन पे रख दें। हथेलियां जमीन पे, दोनों हाथ एकदम सीधे। आपके हाथ एकदम कंधे की सीध में सामने, दोनों लेग्स पीछे से हिप्स के इक्वल खुले हुए और चिन जमीन पे। अभी हम सुपरमैन पोज करेंगे। सुपरमैन पोज के लिए आपको क्या करना है, आपके दोनों हाथ चिन, चेस्ट और लेग्स को आप साथ में रखते हैं, करते हैं और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। बहुत ही बेसिक फंडा है। जब भी आप किसी आसना में जा रहे हैं तो इनहेल करते हुए आप आसना में जाएंगे। आसना में जाके आप एक्सहेल करेंगे, देन होल्ड करेंगे। होल्ड का जब आपको लगता है बस इतना हो पा रहा है, फिर से इनहेल करें और एक्सहेल करके वापस नीचे। ठीक है, तो अभी हम सुपरमैन पोज करेंगे। ब्रीद इन, हैंड्स, चिन, चेस्ट और पीछे से लेग्स को जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। होल्ड, कीप ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रेथ्स। आसना में होल्ड करते टाइम नॉर्मल ब्रेथ्स। होल्ड, इनहेल, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। यहीं से दोनों हाथ हम चेस्ट के पास ले आएंगे। राइट पाम राइट चेस्ट के साइड में, लेफ्ट पाम लेफ्ट चेस्ट के साइड में। दोनों लेग्स पीछे से मिला लेंगे, पंजे एकदम सीधे, चिन जमीन पे। अभी हम भुजंग आसन करेंगे, कोबरा पोज, जो सबके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक आसना है जिससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और कोविड आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है। भुजंग आसन के लिए आप क्या करते हो, आपका जो नेवल रीजन है, नाभि, वहां तक अब अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हो ऊपर। कोबरा पोज के लिए इनहेल करते हुए अपने चिन, चेस्ट और धीरे से बैक को नाभि तक ऊपर लिफ्ट करेंगे।
गर्दन सामने, कंधे पीछे की तरफ खींचे हुए, होल्ड, कीप ब्रीदिंग। पूरा लोअर बैक तक आप ऊपर नहीं उठोगे, कुछ लोगों को आता है और कुछ लोग गलती करते हैं कि लोअर बैक तक पूरा ऊपर उठ के होल्ड करते हैं। पर अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो बस आप अपने नेवल रीजन, जिसे हम नाभि बोलते हैं, कुछ लोग टुंडी बोलते हैं, वहां तक आप बस अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हैं, गर्दन सामने रख के होल्ड करते हैं। कीप ब्रीदिंग। अभी आप देख रहे होंगे कि आपका चेस्ट थोड़ा एक्सपैंड है, जैसे नॉर्मल आप उठे हैं, तो इसी वजह से आपका ब्रीदिंग पूरा आपके लंग्स तक पहुंच पा रहा है। इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएंगे मैट पर, चिन जमीन पे रख देंगे, दोनों लेग्स पीछे से मोड़ लेंगे, राइट पाम से राइट एंकल को पकड़ लें बाहर से धनुरासन के लिए, और लेफ्ट से लेफ्ट एंकल को पकड़ लें। कोशिश करें बाहर की साइड से पकड़े, अंदर से हाथों को ना डालें। दोनों पैरों के बीच में 7 से 8 इंच का फासला। आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं आसनास के बीच में ज्यादा गैप नहीं कर रही हूँ, वरना हमें हर आसना के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप चाहिए होता है। अभी हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन के लिए फिर से जब आप इनहेल करते हो तो आप अपने चिन और चेस्ट को आगे से लिफ्ट करते हो, और पीछे से लेग्स को, नीज को आप हल्का सा जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करते हो, और हील्स को पूरा बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते हो। अभी आपके हील्स हिप्स के पास हैं, तो जितना दूर आप ले जा सकते हो उतना खींचने की कोशिश करोगे। साथ में धनुरासन के लिए ब्रीद इन, चिन, चेस्ट, पीछे से लेग्स को जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप थाई को भी लिफ्ट कर सकते हो तो हल्का सा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करोगे। होल्ड, कीप ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रेथ्स जितना भी आप कर पा रहे हो, चाहे आप इतना 1 इंच 2 इंच जितना आपसे हो रहा है उतने में होल्ड करेंगे। होल्ड, नॉर्मल ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे चिन जमीन पे, और पीछे से लेग्स को भी नीचे रख दें। रिलैक्स। सिर्फ पर 30-30 सेकेंड्स आप अपने लेफ्ट साइड मकर आसन में विश्राम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप लेफ्ट साइड विश्राम कर रहे हो तो जो आपका लेफ्ट साइड मतलब आप अपने लेफ्ट साइड पे लेटे हो, आपका राइट नी आगे की तरफ मुड़ा हुआ है, राइट पाम चेस्ट के आगे, लेफ्ट पाम सर के ऊपर जमीन पे, आंखें बंद, और पूरा अच्छे से विश्राम करें। बॉडी को पूरा रिलैक्स होने दें। मकर आसन से अगर आपका कोई भी ब्लड फ्लो तेज हो रहा है आसना करने से, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आपकी ब्रेथ्स भी नॉर्मल हो जाएंगी।
बिल्कुल शांत। धीरे से राइट साइड मकर आसन में विश्राम करेंगे। राइट साइड पे लेट जाएंगे। राइट पाम जमीन पे, सर के ऊपर। लेफ्ट पाम चेस्ट के आगे, लेफ्ट नी आगे मुड़ा हुआ। और धीरे से इसी साइड से टर्न करके अपनी कमर के बल आ जाएंगे। कमर के बल लेट जाएंगे। कभी भी हम लेफ्ट साइड से नहीं टर्न करके उठते हैं। जब आप सो के भी उठते हैं तो हमेशा राइट साइड से टर्न करके सो के उठें, ताकि हमारे हार्ट पे लोड ना आए। बॉडी सीधी। दोनों पैरों को मोड़ के हिप्स के पास ले आएंगे। अभी हम नटराज आसन करेंगे। पूरा अच्छे से दोनों पैरों को मोड़ के हिप्स के पास ले आएं। दोनों हाथों को अपने साइड में खोलें। हथेली आसमान की ओर, गर्दन सीधी, हाथ एकदम साइड में, एकदम सीधे। नटराज आसन के लिए आप क्या करते हो, जब आप ब्रीद इन करोगे तो अपने दोनों लेग्स को साथ में पहले राइट साइड डालोगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड, और पूरा अच्छे से, जैसे आप टॉवल को निचोड़ते हैं या आपके पेरेंट्स निचोड़ते होंगे, आपने देखा होगा, वैसे ही आपको अपनी पूरी बॉडी को निचोड़ना है। पूरा अच्छे से अपनी साइड को स्ट्रेच करना है, पूरा अच्छे से। आई होप सबको समझ आ गया है। तो दोनों लेग्स मोड़ के हिप्स के पास ले आएंगे, लेग्स मिले हुए। ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे दोनों लेग्स को राइट साइड डाल दें, पूरा जमीन पे टिका दें। और ब्रीद आउट करते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड, पूरा अच्छे से अपनी साइड को निचोड़ दें। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप राइट साइड पे, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करें। नॉर्मल ब्रेथ्स के साथ कीप ब्रीदिंग। आपके राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग है। इनहेल करते हुए लेग और गर्दन दोनों सेंटर में, और एक्सहेल करते हुए पोजीशन चेंज, दोनों लेग्स को साथ में लेफ्ट साइड और गर्दन को राइट साइड। पूरा अच्छे से नटराज आसन में होल्ड करेंगे। नटराज आसन आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। तो जितनी देर भी आप आसना में होल्ड कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रेथ्स लेते रहें। कीप ब्रीदिंग। इनहेल करते हुए लेग्स और गर्दन दोनों सेंटर में, और एक्सहेल करते हुए धीरे से दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ नीचे वापस। आपके हिप्स के साइड में, हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद। शवासन में विश्राम करेंगे, जैसे आप एक डेड बॉडी हो, बिल्कुल शरीर ढीला। जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़ देंगे बॉडी को। सारा का सारा बॉडी वेट पूरा जमीन पे डाल देंगे। कीप ब्रीदिंग। हमने जो भी 4 to 5 आसनास किए हैं,
उसको पूरा अच्छे से बॉडी में उतरने दें। जस्ट रिलैक्स। नॉर्मल ब्रेथ्स। वेरी स्लोली टर्न टूवर्ड्स योर राइट साइड। अपने राइट साइड टर्न करेंगे और धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेके उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन में लेग्स क्रॉस करके, स्पाइन इरेक्ट, आंखें बंद, हथेली आसमान की ओर, अपने घुटनों के ऊपर, जिसे हम महामुद्रा बोलते हैं। अभी जब आप बैठे हो तो आप कोशिश करो कि आपका जो बॉडी वेट है वो आपके हिप बोन पर आ रहा है। आपके पूरे हिप पे भी आपका बॉडी वेट नहीं है, सिर्फ जहां से एकदम लोअर बैक से लेकर जहां से आपके हिप स्टार्ट होते हैं उस हिप बोन तक आपका बॉडी वेट डला हुआ है। तो आप समझ जाएंगे कि आपकी कमर एकदम सीधी है। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। डीप ब्रेथ इन and breathe out. One more time. Deep breath in and let go. Now we will do भ्रामरी प्राणायाम। सबने सुना होगा भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। हम बहुत बेसिक भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके के भ्रामरी प्राणायाम करवाते हैं। कुछ लोग थंब ऐसे रख के, पूरा मुंह ढक के, कुछ लोग सर पे हाथ रख के। बट हम बेसिक हमिंग साउंड निकालेंगे। हम हाथ को महामुद्रा में ही रखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत आप बैठे हुए हो जैसे वैसे ही बैठोगे। बस आप इनहेल करोगे जितना डीप आप कर सकते हो, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आप मुंह बंद करके पूरा अच्छे से, जितना अच्छे से आप हम की साउंड निकाल सकते हो उतना अच्छे से पूरा जाने दोगे साउंड को। मैं एक बार ये आपको करके दिखा रही हूँ। आपने इनहेल किया, बस ये करना है आपको, बहुत ही इजी है ये। सब साथ में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के लिए। इनहेल, हमिंग साउंड, कंटिन्यू करेंगे अपनी रिदम में। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। अगर आपको कोविड है या आप कोविड के बाद रिकवरी फेज में है तो ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको सुबह और शाम दोनों बार 5 टाइम्स करना चाहिए, क्योंकि इस प्राणायाम की वाइब्रेशन से आपकी बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो हमारा वायरस बार बार रेप्लिकेट होता है वो होने से रोकता है और हमारी रिकवरी में बहुत जल्दी हेल्प करता है। क्योंकि ये वाइब्रेशन हमारी पूरी बॉडी को हील करती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली कैसे? क्योंकि हम इतना कुछ आजकल सुन रहे हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है न्यूज़ देख के। तो जितना जल्दी हमारा ब्रेन पॉजिटिव होता है इस वाइब्रेशन से,
वो कोई और प्राणायाम से नहीं हो सकता है। लास्ट टाइम, इनहेल, वन मोर टाइम, एक बारी और करेंगे ताकि हम सबको अच्छे से आ जाए। इनहेल, वन मोर टाइम, पूरा अच्छे से करेंगे। एंड रिलैक्स, आंखें नहीं खोलेंगे, बिल्कुल शांत। भ्रामरी करने के बाद आपको 3 to 4 मिनट्स बिल्कुल शांत बैठना चाहिए ताकि ये वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस कर पाए, ताकि आप वायरस से अच्छे से लड़ पाए आपकी बॉडी। जस्ट रिलैक्स, नॉर्मल ब्रेथ्स, कीप ब्रीदिंग। बस ऐसे ही आँख बंद करके बैठेंगे। बस हम 5 to 7 मिनट्स एक छोटी सी मेडिटेशन एक्टिविटी करेंगे जो आपको उमंग करवाएंगे। आंखें ना खोलें, आंखें खोल के नहीं देखेंगे। तो आज हम सब ने कुछ टाइम बॉडी के लिए कुछ आसनास करें। अब हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट अपने माइंड के लिए कुछ करेंगे। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा इंटरनल इमोशंस, हमारे भाव, सब कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। आपने देखा होगा हमारी मोस्टली सक्सेस, फेलियर ही लाइफ सिर्फ हमारे इमोशंस, हमारी थॉट्स सबको ही संभालने में चला जाता है। और ये जो आर्ट है ऑफ हैंडलिंग द माइंड, ये ना ही स्कूल्स में सिखाया जाता है, ना ही कॉलेजेस में, ना ही कहीं भी।
और ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है इमोशंस थॉट्स का, ये हमारे साथ हमेशा से है, जब से हम पैदा हुए हैं, एंड वी डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। और हमारे पास जब भी हमारी लाइफ में कोई स्टॉर्म आती है, कोई सक्सेस होता है, कोई फेलियर होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या सब कुछ, एंड ऑलमोस्ट ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ है। तो हम कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक छोटी सी माइंडफुल एक्टिविटी करेंगे, और आप अपना 100%, क्योंकि सबके लिए बहुत बहुत नया होगा, शायद आज तक किसी ने भी ये प्रैक्टिस ना करा हो, या बहुत ही मिनिमम 0.5% ऑफ द पीपल जो यहाँ पर हैं उन्होंने करा हो। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसे फॉलो करते जाना है, क्योंकि आपका माइंड है ये, इट विल रेजिस्ट एवरीथिंग दैट विल बी सेड टू यू। जो भी आपको कहा जाएगा उसे रेजिस्ट करेगा, बट जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो। ये 5 to 10 मिनट्स जो आप देखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधा होके बैठ जाएंगे, कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं हम। जो भी आपने कॉन्सेप्ट सुने आजकल मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन ये है वो है, सब हटा दीजिए। वी आर जस्ट डूइंग अ साइलेंट सिटिंग। साइलेंट सिटिंग मतलब खाली बैठना, वो शायद हमने आज तक नहीं करा है। कभी भी हम बैठते हैं तो कुछ सोचते रहते हैं, पास्ट फ्यूचर कुछ प्लान करते रहते हैं, या फिर यही सब करते रहते हैं, पर हम कभी भी 5 से 10 मिनट शांत होके नहीं बैठते। ऐसा टाइम जो सिर्फ हम जिसमें बैठे हैं, तो आज हम वही करेंगे, बस आंख बंद करके। ठीक है, बिल्कुल स्पाइन इरेक्ट, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, चाहे आपको थोड़ा सा पेन भी हो रहा हो, पर अपना स्पाइन इरेक्ट रखें। ये सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। सोचिए 10 मिनट जो भी पेन आएगा, आई एम आउट ऑफ इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्पाइन इरेक्ट, टेक अ डीप ब्रेथ इन, बहुत ही धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लेंगे। Slowly start breathing out। फिर से एक और लंबी गहरी सांस अंदर, और धीरे धीरे बाहर। लास्ट टाइम, and slowly breathe out। now just keep sitting। जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं, लेट देम फ्लो, उनको बहने दें। आपने ऐसा कभी नहीं करा होगा। हमारी कोई ना कोई आइडेंटिटी हमेशा थॉट्स के साथ जुड़ी रहती है। जैसी थॉट्स आ रही हैं उसे बहने दें, कोशिश ना करें उसे फ्लो करने की या फ्लो रोकने की। लेट एवरीथिंग बी हैपनिंग। आपकी जो भी डिजायर्स आ रही हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये 10 मिनट नहीं बैठना है, ये क्या हो रहा है, द माइंड विल बी सेइंग मेनी थिंग्स। माइंड बहुत कुछ कह रहा होगा, ये 10 मिनट क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हाउ आर यू नॉट कनेक्टिंग विद मी, मेरे साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। आप बस बैठे रहें। यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस। बहुत हैवी इमोशंस आ रहे हैं कई बार, या कई बार कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो रहा होगा शायद कुछ भी आपको ना लग रहा हो। आप इन 10 मिनट बस आपको बैठना है, जैसा हो रहा है लेट इट हैपन। माइंड चाह रहा है आपको उठाना, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देके, डिफरेंट डिफरेंट बातें बता के, किसी से बात करना चाहता है आपका माइंड, बट यू आर नॉट अलाउइंग टू कनेक्ट। आप नहीं कनेक्ट करना चाह रहे उससे। जैसा हो रहा है, जैसा बोल रहा है, चाहे कितना ही ऐसा थॉट आ रहा है जो आप जिससे बहुत टाइम से कनेक्ट करते ही करते हो, और जो कनेक्ट कर रहा है उसे करने दो, जो भी हो रहा है उसे होने दो, बस आप बैठे हो, चाहे आपको कितना ही अजीब सा लग रहा है अंदर। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड, इट इज नॉट अबाउट फीलिंग बैड, इट इज अबाउट नथिंग।
कुछ नहीं है ये। बस आप ये 5 से 10 मिनट बैठ के देख रहे हो कि ऐसा क्या है कि मैं कभी ऐसे खाली बैठ ही नहीं सकता, हमेशा कुछ ना कुछ करना है, करियर के बारे में सोचना है, पास्ट में ये क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरा करियर, मेरी सक्सेस, मेरा फेलियर, मेरे पेरेंट्स, मेरे से जुड़े हुए लोग, बस उन्हीं के बारे में, उन्हीं से रिलेटेड सब कुछ चलता रहता है। हम किसी चीज़ को नहीं रोक रहे आज, सब कुछ चलने दें, पर आप स्टिल अपनी कमर सीधी रख के बस बैठे हो, आंखें बंद, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल पे कुछ करना है, कहीं और कुछ करना है, माइंड अपने बेस्ट गेम सबके साथ खेल रहा है और हमेशा खेलेगा। जस्ट लेट्स ट्राई टू सिट फॉर 5 to 10 minutes, जस्ट सिटिंग, बस बैठना। क्यों नहीं बैठा जाता खाली सिर्फ अपने साथ? ये एज से रिलेटेड नहीं है, आप चाहे यंग हो चाहे ओल्ड, उससे रिलेटेड नहीं है। यू आर born like this alone, without any connections, without anything। ये सारे कनेक्शंस आपने यहाँ डेवलप करे, सारी बातें यहाँ डेवलप करी। माइंड इज प्लेइंग द बेस्ट गेम कि नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन जो इन चीज़ों को फॉलो करे। पर जस्ट अंडरस्टैंड कि ये उसका एक और गेम है। यू आर आउट ऑफ एनी एज, आउट ऑफ एनी जेंडर, ना मेल और फीमेल, young or old, student or not a student, out of anything, just sitting, जैसा भी लग रहा है बॉडी में, बॉडी इज ऑल्सो ट्राइंग विद द माइंड अपना बेस्ट गेम खेलने का। कैसे मैं इसे उठाऊं? आई कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन, मैं इसे नहीं होने देना सकता। द यूनिवर्स डज नॉट वांट्स यू टू सिट लाइक दिस, बट आप बैठे हो। जस्ट कीप सिटिंग, डोंट लेट द माइंड पुल। माइंड का जो पुल है आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने का, डोंट लेट इट हैपन, जस्ट अंडरस्टैंड इट। ये सिर्फ बादलों की तरह है, लाइक द क्लाउड फ्लो इन द स्काई। जैसे बादल चलते हैं आसमान में, वैसे थॉट्स और इमोशंस चल रहे हैं आपके अंदर। पहली बार आप ऐसा कुछ देख रहे होते हुए, आप हमेशा बस इनके सहारे ही चलते रहे हो, बट टुडे बस सब कुछ होने दें। मेरी आवाज बंद होते ही अगेन द माइंड इज ट्राइंग टू पुल यू बैक। आंखें नहीं बंद करना चाहते आप, क्योंकि आप नहीं कर सकते, आप नहीं करना चाहते आंखें बंद, सिर्फ सोते हुए करते हैं या फिर जब आप थक जाते हैं, पर कभी अपनी मर्जी से आप अपनी आंखें बंद नहीं करते। Just last 2 minutes, last 2 minutes. Just keep sitting, बस बैठे रहें। Take a deep breath in and breathe out. Another deep breath in and slowly breathe out. और बहुत ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, बहुत ही धीरे धीरे। जिसका मन नहीं है खोलने का, नॉट अ प्रॉब्लम, बट हु वांट, जिसको भी चाहिए, दे कैन स्लोली ओपन देयर आईज। कुछ डिफरेंट लगा? पहली बार करा था शायद सबके लिए, एक ऐसी चीज जो कभी नहीं करते, है ना? बट
विल ट्राई, मतलब और भी डिफरेंट टाइप की चीजें हम आगे के 7 डेज में करेंगे। लाइक स्लीपिंग मेडिटेशन हम कल करेंगे, एक ऐसी मेडिटेशन हम कल करेंगे शायद जो हम लेट के करते हैं, और वो आपको 20 मिनट्स अगर हम उसे करते हैं तो वो आपको 8 आवर्स की स्लीप देती है। 8 आवर्स स्लीप इज इक्वल टू 20 मिनट्स ऑफ दैट मेडिटेशन। तो अगर पेपर्स के टाइम टाइम नहीं होता तो बस उस मेडिटेशन को कर लो, पूरी रात पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कल हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लाइक डांस, योगा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एरोबिक्स एंड जुम्बा, और देन वी विल डू स्लीपिंग मेडिटेशन। थर्ड डे पे हमारा सूर्य नमस्कार डे है, जहाँ पर हम बहुत हैवी सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर एक बहुत ब्यूटीफुल सी डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, और तो किसी को भी कोई भी डाउट्स है तो उसके बाद हम डाउट सेशन करेंगे। और कोविड से रिलेटेड एक चीज है कि कोविड से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्राणायाम। कोविड से रिकवरी या कोविड को हैंडल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राणायाम। प्राणायाम आपकी लंग से रिलेटेड है, कंप्लीटली रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आपको पता है कोविड सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अटैक कर रहा है, तो प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो ऑन द थर्ड डे हम ब्रेथ इन प्राणायाम करेंगे, लाइक तो विल डू पूरे 1 घंटा हम यही करेंगे, ब्रीदिंग एंड प्राणायाम, और वो बहुत ही सूदिंग होता है। और वो प्राणायाम एक बार लर्न सर्टिफिकेशन या किसी चीज के लिए मत आना, ये सब अपने लिए आना। ये 7 डेज अगर आप आ सकते हैं तो आप खुद को एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि मैं अपने आप को 1 घंटा दे सकता हूँ। इट्स अ सर्टिफिकेट टू योरसेल्फ। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है किसी की जो हमसे पर्सनली बात करना चाहता है, तो जो हमारे ग्रुप पे हैं वो हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग आईसेक जिनको मेल आया है वो आईसेक वालों को मेल कर सकते हैं, एंड वो हमारा आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे अगर आपको हमसे पर्सनली कोई भी डाउट पूछना है। और जो कोई भी अभी डाउट पूछना चाहते हैं कोविड से रिलेटेड या कोई आसना से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड कुछ भी, अभी 5-10 मिनट वेट कर सकते हैं हम, मतलब युग रुक सकते हैं हम। ओपन टू ऑल करने वाले हैं सेशन, अनम्यूट करने वाले हैं सबको, और फिर 5-10 मिनट हम डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आप बातें करना चाहें या सब बैठना चाहें। तो थैंक यू। तो आप सबको अनम्यूट कर दीजिए जो होस्ट हैं इस मीटिंग के, ताकि जो भी डिस्कस करना चाहे हमसे कुछ तो वो रुक सकता है। सबको अनम्यूट कर दीजिए इसमें, ताकि कोई भी हमसे कुछ डिस्कस करना चाहता है तो दे कैन डिस्कस। अगर कोई डाउट है तो वो मैसेज में भी टाइप कर सकता है। अपने आप को अनम्यूट कर सकता है एंड दे कैन स्पीक टू अस। एंड इफ अगर कोई बहुत शर्मा रहा है तो मैसेज भी कर सकता है, मैसेज टू एवरीवन, और हम उसमें आंसर दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे ही बता दो कैसा था मेडिटेशन, कैसा था योगा, कैसा था, कुछ चेंज करना है? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ बताओ बताओ। सर एक सिंपल सा रिक्वेस्ट था कि अगर हम इस योगा और मेडिटेशन सेशन को मॉर्निंग शेड्यूल में भी अगर ला सकें हाँ तो वो बहुत अच्छा होगा सर, क्योंकि इवनिंग आवर्स में मुझे जमता नहीं है योगा और मेडिटेशन। समझ रहा हूँ। आप कोई नहीं, आप पता है क्या है ना, थोड़ा सा बस अभी जो ये आप ना एक बार आईसेक को शायद चाहे तो मेल कर लीजिएगा, अगर वो लोग चाहे कि मॉर्निंग में करना चाहे। और आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप 7 डेज आइए इवेंट में, पहले एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम कराते हैं, मेडिटेशन एंड योगा एंड एवरीथिंग, तो आप उन सब में सबको ही ज्वाइन कर सकते हो। हमें बहुत अच्छा लगता है जब यंग लोग आते हैं इस चीज में, और हम भी बहुत यंग हैं। हाँ, कैसा रहा आज का? अच्छा लगा? फर्स्ट टाइम करा था आपने? जी नहीं सर, मैंने इससे आज सुबह ही हमारे एलपीयू की तरफ से एक इंटरनेशनल योगा डे के कारण के उपलक्ष्य में एक मेडिटेशन हमें करवाया गया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, यही जो डू नथिंग, मेडिटेशन मींस डू नथिंग। डू नथिंग, राइट 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 राइट। इट्स तो अ स्मॉल आर्ट जो शायद आप मास्टर कर लो तो सक्सेस फेलियर का
could we schedule the program nicer, just pain in the back, एक स्कोर है पेन इन द बैक। अरे अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि पेन आ सकता है शरीर में, है ना? हाँ। अच्छा, ये ना जिन लोगों ने हो सकता है फर्स्ट टाइम किया हो, तो जो हमने अपने पेट के बल लेट के आसनास किए थे, तो उससे हल्का पेन आ सकता है। तो आप या तो गर्म पानी से नहा सकते हैं 2 घंटे के बाद, अभी आप नहीं नहाएंगे, या फिर आप पूरी बॉडी को ऑयलिंग कर सकते हैं घोले के तेल की या सरसों के तेल की, बेसिक ऑयल, और उसके बाद आप सुबह नहा सकते हैं और 2-3 दिन में आपका ये बेसिक पेन चला जाता है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है बैक पेन की, तो वो अलग चीज है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रॉपर, तो वो एक अलग चीज है। अगर योगा से आज आपको पेन आया है, वो बेसिक ऑयलिंग या वार्म वाटर बाथ से चला जाता है। अच्छा, और कोई कुछ? हाँ सर, आफ्टर योगा आई गॉट हेडेक, व्हाई? अच्छा, तो ये इराम जहान ने पूछा है कि आई गॉट हेडेक। इसका ना बेसिक सा फंडा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और क्या होता है कि जब हम योगा करते हैं और उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं, और बेसिकली योगा जब हम एक ब्रेथ के साथ करते हैं, तो हमारा पूरा माइंड रिलैक्स होता है। तो वो क्या होता है कि जो भी आपकी टेंशन होती है ना, तो वो इतना अकड़ी होती है आपकी बॉडी में, बहुत जनरल टर्म्स में समझा रही हूँ, तो इतना ज्यादा आपका पूरा भरा होता है, ये हम सबका ही भरा होता है। तो जब वो रिलीज होता है ना, तो हमें लगता है कि हमारे को हेडेक हो रहा है, पर वो ऐसा नहीं होता कि हमें हेडेक हो रहा है। वो टेंशन आपकी रिलीज हो रही होती है, कहीं ना कहीं आपकी मसल्स रिलैक्स हो रही होती हैं, तो वो इस वजह से आपको हल्का सा हेवीनेस लगता है। उसे हम हेडेक नहीं बोलते योगा की टर्म्स में, वो हल्का सा हेवीनेस होता है। जो आप अगर सो जाओगे रात को, तो आपको सुबह तक वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। और एक और चीज है, पता है क्या, अगर ये हेडेक आया तो एक तरीके से बहुत अच्छा है, ये शायद ना योगा के बाद और खासकर शायद मेडिटेशन के बाद आया होगा, क्योंकि जनरली हमारी आदत नहीं होती कि हम ऐसे शांति से बैठे, कुछ ना कुछ करना होता है। तो माइंड होता है ना, आप ऐसे मानो कि माइंड आपका एनिमी, वो आपको रजिस्ट कर रहा है, आप और कुछ नहीं पता, तो आपको हेडेक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इट विल रजिस्ट एवरीथिंग जो उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है। बट जो आपको अपनी लाइफ में लड़ाई है, ना ही जॉब लेनी है, ना ही पैसा कमाना है, द ग्रेटेस्ट बैटल आपको जो अपनी लाइफ में लड़नी है, वो है विद योर माइंड। और ये जो बैटल है, आप अपने माइंड से नहीं लड़ सकते। माइंड कैन नॉट फाइट द माइंड। ठीक है, सो दिस बैटल हैज टू बी, कैसे जब जीतोगे इस बैटल को, इसको जीतोगे अंडरस्टैंडिंग से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू नेचर। इसे ही हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, टर्म है स्पिरिचुअलिटी। इसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर माइंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी। और आप देखते हो, आप कितना कुछ पढ़ते हो, मतलब देखो, मैं आई एम ऑल्सो रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट। तो हम कितना कुछ पढ़ते हैं साइंस के बारे में, एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में, लाइफ में क्या हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट यू डोंट वांट टू स्टडी अबाउट योरसेल्फ। अब आपके अंदर एक इतना बड़ा वर्ल्ड है जिसके बारे में आप बिल्कुल स्टडी, आपको कोई नॉलेज नहीं है। कोई इमोशन आता है, गुस्सा आया, एक इमोशन आया, आप जाते हो एंड यू जस्ट रिएक्टेड। ठीक है, आपको क्या हुआ, कल एग्जाम का रिजल्ट है, एंजाइटी आ रही है अंदर से, आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी का नेचर है एंजाइटी लाना, बट व्हाट यू डू, अरे एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है। ये नहीं पता कि दुनिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं, इंडिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं वर्ल्ड में, और हर बंदे को एंजाइटी होती है, चाहे बंदा बाहर से दिखाए ना दिखाए, क्योंकि ये बॉडी का नेचर है। किसका नेचर है? बॉडी का। माइंड का नेचर है रेजिस्ट करना। तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ बॉडी एंड माइंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर एट अ यंग एज। अगर ये समझ जाओगे तो आगे यू कैन प्रोग्रेस वेरी वेल। अपनी लाइफ का ख्याल, अपने पेरेंट्स का ख्याल, आगे जो भी आपको करना है, दिस इज द बेस्ट थिंग जो आपको स्टडी करना चालू करना चाहिए। स्टार्टिंग में स्टडी लगेगा, बाद में पता लगेगा इट इज द सिंपलेस्ट थिंग ऑफ लाइफ। राइट? एग्री करते हो तो भाई उसमें डालो मैसेज में, हाँ बढ़िया है। ठीक है, व्हेन आई क्लोज एक और है, अच्छा हाँ, व्हेन एक मुस्कान का मैसेज है, हाउ टू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स। तो बताओ। देखो, ये क्या है ना कि अगर वैसे आप आयुर्वेदिक में जाओगे, वैसे ना ये बॉडी का ना इतना मैटर नहीं करता कि डार्क सर्कल्स है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला गोरा, ये सब ना बहुत बहुत बेसिक चीजें होती है जो हमारे माइंड ने बना रखी होती है, सोसाइटी ने बना रखी होती है, या हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि नहीं बेटा आपको ऐसा होना चाहिए, नहीं बेटा आपको वैसा होना चाहिए, क्योंकि एक आइडेंटिटी बन जाती है।
बट फिर भी अगर आपको हटाने हैं तो आप वैसे बेसिक जो आप लगा सकते हो। अगर आप आयुर्वेदिक में जाओगे तो आप अपने आंखों पे खीरा रख सकते हो या आलू रख सकते हो, या फिर मैं जो परसों हमारी ब्रेथ इन प्राणायाम वर्कशॉप होगी तो उसमें कुछ फेशियल योगा होंगे, तो वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे फेस की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जिसमें हम आई योगा भी करते हैं। तो उसमें आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, तो उससे भी बहुत बेनिफिट आता है हमारे फेस पे। और ना एक और चीज से डार्क सर्कल्स होते हैं, फोन ज्यादा चलाने से या फिर ज्यादा लैपटॉप पे देखने से। क्योंकि और थोड़ा सा अपने साथ बैठा बैठा करिए, मतलब क्या है, अपने साथ थोड़ा टाइम ज्यादा बिताओगे ना, अगर थोड़ा सा इन आईज को भी आराम दोगे, क्योंकि देखो आईज कैसे रिएक्ट करेंगी, आईज कैसे दिखाएंगी कि मैं परेशान हो रही हूँ डार्क सर्कल्स निकाल के, ठीक है। तो आईज दिखाती है कि आई एम गेटिंग रिड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। तो But थोड़ा सा अपनी sir, आंखों we को can't help, no, because we are suffering with online classes. Everything is online हाँ, around us, so we can't help in that. तो द बेस्ट थिंग इज, हम कल योग निद्रा करेंगे, स्लीपिंग मेडिटेशन, तो वो आपको इतना रिलैक्स कर देगी, तो उसके बाद आप बताना कैसा लग रहा है, ठीक है, वो देखेंगे आपको कैसा। पता है मैं ना बैडमिंटन क्लास जाती थी 10th तक, एंड लास्ट में बैडमिंटन क्लास के वी यूज्ड टू हैड सम योगा सेशंस एंड ऑल। तो मेरा फेवरेट योगासन होता था निद्रासन, जिसमें हाँ योग दे यूज्ड टू प्ले सम म्यूजिक एंड टेल दैट रिलैक्स करो, बिकॉज़ हाँ इतना खेलने के बाद ना, हाँ यार अब म्यूजिक भी उस टाइम पे, सो दैट वुड बी अ फेवरेट पार्ट ऑफ योगा। ये हम आशावासन ट्राई करेंगे, राइट। स्लीपिंग मेडिटेशन ट्राई करेंगे कल, हम देखते हैं कैसा रहेगा। हाँ, अच्छा मतलब एक आपने की होगी, कुछ लोगों ने पहले बहुत, क्योंकि बहुत हैं यूट्यूब पे निंद्रास, बट जो हम कल करेंगे या कुछ लोग अपनी करवाते हैं, वो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये प्रॉपर गाइडेड योग निद्रा है। मतलब कुछ अपनी नहीं बनाई हुई है किसी ने, जो सबसे पहले एक बेसिक योग निद्रा आई थी गाइडेड, हम वो करवाएंगे आपको, तो उससे बहुत बेनिफिट आता है, सबको आएगा, स्पेशली स्टूडेंट्स को। और अच्छा एक और क्वेश्चन है इरम जिहान का, व्हेन आई क्लोज माय आईज माय ब्रेन शोज स्केयर पिक्चर्स ऑफ गोस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या बोला था, मेडिटेशन के टाइम क्या होगा, देखो मेडिटेशन मेडिटेशन कुछ नहीं होता, मेडिटेशन छोड़ो, माइंड ट्राइज टू फाइट इट्स ग्रेटेस्ट बैटल। माइंड ऐसा है जो लड़ रहा है, माइंड ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाएगा जो आपने शायद कभी इमेजिन भी ना करी हो, ठीक है, ताकि आप अपने साथ ना बैठ सको, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी आप मूवी देख रहे होते हो, मतलब आपको अच्छी मूवी देख लो, लाइक एवेंजर्स देख रहे हो, ठीक है, जो आपको पसंद है, तो मूवी आप देख रहे हो, तो आपने देखा होगा माइंड रिएक्ट नहीं करता कुछ भी, माइंड बहुत शांत रहता है, ऐसा लगता है आई एम द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन ऑन द प्लेनेट। उसका माइंड बिल्कुल शांत है और मस्त मूवी देख रहा है, क्योंकि इट इज गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, ठीक है। बट जैसे ही आप ट्राई करते हो टू बी विद योरसेल्फ, आप ट्राई करते हो कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं और माइंड को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो माइंड इज लाइक अ डॉग, जो डॉग होता है ना रेजिस्ट करता है जैसे, तो माइंड के पास क्या है, पिक्चर्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, तो वो तीनों चीजों को यूज करके अपनी बैटल फाइट करता है और आपको ग्रेटेस्ट बैटल इट फाइट्स। तो मेडिटेशन जो बताते हैं ना कई बार, तो मैं मतलब सुनते हैं इधर उधर, इट इज लाइक कि माइंड काम हो जाता है, माइंड में कुछ नहीं आता, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, सब बकवास है, कुछ नहीं होता ऐसा। माइंड बहुत हमें लाइट दिखाई दी, कुछ नहीं है ये ऐसा, सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बना, बहुत लोगों को बहुत सारा इमेजिन होता है। अगेन इट्स इमेजिनरी थिंग, लाइट्स आर इमेजिनेशन, एवरीथिंग इज इमेजिनेशन। अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हो, वी आर इनटू इट अराउंड 5 to 6 years, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ सारी चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको अच्छा लगेगा वो आगे हमारे साथ भी मूव कर सकते हैं जर्नी पे, देखते हैं कैसा रहेगा, हम गाइड करेंगे उन्हें थोड़ा थोड़ा चीजों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा और कहाँ है, यू कैन फॉलो हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, डज योगा हेल्प इट। हाँ बताओ चलो, विजय बिष्ट। हाँ, बेली फैट के लिए योगा सबसे बेस्ट है क्योंकि मतलब बेली फैट बेसिकली हमारे खाने से आता है, कुछ लोगों को हेरिडिटी भी होती है, और लेकिन योगा क्या होता है ना कि अगर आप मान लो बहुत लोग जिम जाते हैं या फिर बहुत लोग ऐसे बाहर वर्कआउट करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, पर ये जो हमारा फैट रिड्यूस होता है ना, ये बहुत जल्दी हम रीगेन कर लेते हैं जब हमने छोड़ा। अगर कोई लोग जिम जा रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, जैसे आप वो चीजें छोड़ देते हो, आपका वो जो भी चीजें आपने लूज की है इंचेस या फैट, वो आपका रीगेन हो जाता है। बट योगा ही एक ऐसी चीज है कि अगर आप वो डेली कर रहे हो, तो जो भी चीज आप रिड्यूस करोगे, चाहे आपका वो कोई डिजीज है या आपका फैट्स है बॉडी के, तो वो आप कभी भी रीगेन नहीं करोगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब अगर आपने कुछ टाइम के लिए रेगुलर कर लिया, जैसे आपने 3 to 4 months
बिल्कुल आप योगा छोड़ दो, प्रॉब्लम्स ऐसे कि आप लॉन्ग